Yeah, so introduction for the human nutrition was completed, and now we have to continue with human digestive system, right? Uska different parts of the digestive system, the alimentary canal, the locations, the structure, the functions, and main part the digestive system कैसे function करता है, especially उसका physiology. The physiology of digestion is also very important. ठीक है, तो नाश्ता वगैरह हो गया, आज अपने को डाइजेस्ट करना है. Right? Yeah. Okay. So first of all, to give you an overview of the digestive system. Okay. एक flow chart मैंने बनाया, तो I will share that and show you first, and then we will go each part at a time. ठीक है, पहले पूरा overview देख लेते हैं. So, okay. सबसे पहले बता digestive system means what? The system by the help of which we digest the food. Okay. So what is the difference between digestive system and alimentary canal? By alimentary canal, we swallow the food. We swallow the food through the entire alimentary canal. No, Is there any difference between them, or is it the same? Hmm? Alimentary canal is a part of digestive system. Okay. So is there anything which is a part of the digestive system but not a part of the alimentary canal? Let's think. Any such part of the body which is a part of the digestive system but not a part of the alimentary canal. तो उसमें वो difference समझ में आएगा. Okay. We eat food normally, I mean always, through the What? we eat food through the Mouth. mouth. What happens to the food when it passes through the mouth? What happens in the mouth first of all when we place the We food in the mouth? chew the food Hmm. and the food becomes little pieces and we swallow them. Okay, the food is broken into small pieces, then you swallow them. So, is it just into small pieces or something else happens to the food? Is it only pieces or it becomes like a paste? Paste. Sometimes paste, sometimes people. Okay, that depends on the food that you eat, correct? Okay, okay. What else is there in the mouth? Saliva. Yes, saliva. What else? That helps you to swallow the food that you eat. सबसे important चीज क्या है वो? Tongue. Yes, of course, it is the tongue. How can you forget that? Right? And very important,
We have 32 of them. Talking about the teeth. वो कैसे बोल सकते हैं? Right? You can see this flowchart I have shown. थोड़ा zoom Yes. करता हूँ मैं. Yeah. So here, this flowchart gives you an entire overview of our digestive system. Okay. See, सबसे पहले when you say digestive system, it is a combination of two things. First is alimentary canal. Okay, and second one, it is the digestive glands. Okay, alimentary canal and the digestive glands. दोनों जरूरी है. ठीक है, both of them together make our digestive system. Okay, so alimentary canal, when you say, it means when you say the word canal, that means there is something hollow. Okay, so when it is something hollow, that means that is the part of the digestive system through which the food will pass through. The food will actually go through. उसको बोलते हैं alimentary canal. Digestive glands are the associated structures that produce the respective enzymes या digestive juices, which will help in digestion of the food, but the food will not actually go through that. तो उसको बोलते हैं digestive glands. Okay, so here you see the food is the one something that you eat. Okay, and it goes into the mouth. Okay, now mouth mein what are the three main things? You have teeth, you have tongue, and salivary glands, of course, which produces the saliva. Okay, so how many teeth a normal complete mouth has? 32. Very good. That's in the case of an adult, but we'll see the details after this. Okay, then the tongue. Normally a person has how many tongue? One. One. It's good. It's अगर one ही हो तो अच्छा है, right? Yes. What about salivary glands? How many do we have? One. Yes. No, it is not one. Okay, Salivary gland. glands. Yeah. Saliva count नहीं कर सकते ना. That's a liquid. Yes. Though. For each of these parts, okay, you have to know their exact number. Okay. Now nobody is going to ask you how many mouth does a person has. Okay. Mouth एक ही है. Teeth 32, tongue is 1, salivary glands are 3 pairs. We have 6 of them. Okay, there are 3 pairs of salivary glands. Okay, so with the help of all these 3, that means the teeth, the tongue, and the saliva produced in the salivary glands, the food in the mouth is chewed and cut into pieces and grinded so that it is made into a form of a paste. And then जब वो तैयार हो जाए कि पेस्ट जैसा बन जाए, easy to swallow. Okay, so we swallow the food and it goes into the esophagus or the food pipe. Okay, food pipe का दूसरा नाम है esophagus. So now what we have eaten was the food, but what we have swallowed is called the bolus. जो masticated food है, थोड़ा soft हो गया है, which we have swallowed, उसको बोलते हैं bolus. Okay, that bolus goes into the food pipe. We have a long food pipe, okay, in the throat region, in the neck region, which connects it on the lower end into the stomach. So food pipe में there is no digestion, nothing at all. वो सिर्फ एक connecting tube है. But here also the food passes through that, okay, in a specific motion, जिसको हम लोग बोलते हैं peristalsis. Okay, this word you have to remember, peristalsis, which means alternate contraction and relaxation of the muscles. अभी जैसे food pipe है, when you say food pipe, it is not made up of steel or rubber, है कि नहीं? वो muscular tissue का बना हुआ है. So that means it is flexible. So the bolus which you consume, which is at the top of the food pipe, जो अंदर जाना है, does it happen कभी खाना खाते वक्त ऐसा लगता है कि खाना अंदर जंप मार रहा है,
ऐसे स्टमक में ढक करके गिर रहे नहीं, राइट? बिकॉज एट अ टाइम यू कैन हैव सो मच, कभी दुकान वगैरह बाहर गए है ना, पाव भाजी वगैरह खा लिया द्वारका में बैठ के, राइट? सो दैट टाइम यू कंज्यूम सो मच ऑफ इट एट अ टाइम। ओके, तो एक साथ जब इतना सारा खाना अंदर जाना है तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि देयर शुड नॉट बी सडन जंपिंग ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, इट शुड बी गोइंग इन अ स्लो रेगुलेटेड मैनर। तो फूड पाइप क्या करता है, उसके मॉल के जो मसल्स है वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, so it is slowly pushing the food down and then it lands into the stomach। ये जरूरी है, ओके? बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाएगा कि देयर इज अ हाई चांस कि एयर विल एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं डाइजेशन। बट कभी कभी वो चोक हो जाता है। वो होता है, वो वो थ्रोट रीजन में होता है कि कभी कभी खाना जो है वो एक्चुअली फूड पाइप के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, कि सी माउथ से जब अंदर जाए तो वहां पर सबसे पहले आता है अपना फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन फूड पाइप एंड द विंड पाइप, दोनों इधर ही है ना, हाँ ओके? तो खाने को सही जगह पे डालना जरूरी है, वरना खाना विंड पाइप में चला जाएगा एंड देन इट विल गो इनटू द लंग्स, तो वो नहीं होता है ना। एंड दैट्स द रीजन इट इज सेड कि जब खा रहे होते हो तो बात नहीं करना होता ज्यादा, because while eating, while swallowing, if you speak, the food can go in a wrong path and तब वो choking होती है। एंड choking का दूसरा रीजन हो सकता है कि प्रॉपर च्यू नहीं किया अगर, हाँ जैसे बॉम्बे के लाइफस्टाइल में होते हैं कि ट्रेन पकड़ना है तो जो नाश्ता फटफट फटफट खा लिए, बाद में गाय की तरह ट्रेन में खड़े रह के चबाते रहेंगे, ओके? तो ऐसे नहीं करना, so it has to be properly chewed completely and then swallowed, so there has to be that mindful eating, that is very important, okay? Proper अच्छे से चबा कर you understand what you are eating and then you swallow it, तो पेरिस्टालसिस के थ्रू वो अल्टीमेटली स्टमक में पहुंचते हैं, ओके? अभी स्टमक इट्स अ जे शेप्ड सैक लाइक इलास्टिक ऑर्गन, ओके? है अपना छोटा सा स्टमक, हम लोग खाते हैं कितना वो अलग बात है, okay? So that stomach consists of three parts, it is cardiac, fundus, pylorus, okay? सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है स्टमक का, दैट्स कॉल्ड कार्डियक, कार्डियक बिकॉज इट इज नियर टू द हार्ट, okay? Then the middle and the largest portion is called fundus, the body of the stomach, and the lower portion is called pylorus, okay? So from the esophagus this bolus will enter into the cardiac stomach, ठीक है? वहां पे रेगुलेशन होगा धीरे धीरे करके कार्डियक स्टमक में जाकर वहां से इट विल गो इनटू द फंडस, इट विल रिमेन इन द फंडस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज्यादा टाइम के लिए फंडस में रहेगा वो, बिकॉज दैट इज वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड विल टेक प्लेस, नॉट कंप्लीट केमिकल डाइजेशन बट सम पार्ट ऑफ इट टेक्स प्लेस इन द फंडस, मेनली वहां पे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, वी विल सी द रिएक्शंस। Okay, so after the partial digestion is over, then from the fundus it will enter into the pylorus, okay? Stomach में highly acidic medium वगैरह बन जाते हैं, it will go into the pylorus, from the pylorus it will be coming out again in a regulated manner, slow and properly regulated phenomenon, okay? And from the pylorus when it comes out, that means it is coming out of the stomach, so next part has small intestine, okay? Now small intestine is actually a long one, वो हाईली कॉइल्ड ऐसे मैगी नूडल्स की तरह अंदर फिट हुआ है, ओके? so small intestine is made up of three parts, the topmost one is called duodenum, jejunum, ileum, ऐसे तीन पार्ट है, okay? so the connection between the stomach and the small intestine is called duodenum, to which there are tubes or ducts connected from liver, gallbladder and pancreas, कि लिवर में से एक डक्ट आ रहा है, गॉल ब्लैडर में से एक डक्ट आ रहा है
पैनक्रियास में से एक रखा है. All three are connected to the duodenum. Okay. Now liver produces something called bile. Pancreas produces something called pancreatic juice. Okay. अभी लिवर में जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. इसीलिए लिवर एंड गॉल ब्लैडर में से जो डक्ट निकलते हैं दे जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट एंड फिर वो डुओडेनम से कनेक्ट होते हैं. ओके, व्हिच इज कॉल्ड एज द कॉमन बाइल डक्ट. So the bile from these two and pancreatic juice is poured into the duodenum. अभी जो खाए थे वो फूड जो स्टमक में पहुंचा वो बोलस. स्टमक में पार्शियल डाइजेशन के बाद जो निकला उसको बोलते हैं काइम. Now it is not called bolus, it is called chyme. Okay, that means the bile and the pancreatic juice is added to the chyme in the duodenum. अभी समझा? Okay, so duodenum is significant for that reason. उसके आगे आता है jejunum, which is the smallest part of the small intestine. Okay, छोटा सा part है. And jejunum literally उसका जो meaning है it is called empty. कि मतलब बहुत सारे केसेस में फोरेंसिक डॉक्टर्स ने देखा गया है जब ऑटोप्सी वगैरह करते हैं पोस्टमार्टम जब करते हैं तो जेजुनम पोर्शन खाली मिलता है. लाइक ज्यादा टाइम वहां पे फूड स्पेंड नहीं करते. इट पासेस ऑन इनटू द इलियम, द थर्ड पार्ट, एंड द इलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो जब इलियम जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम वो काइम स्पेंड कर रहा है बिकॉज बाकी जितना केमिकल डाइजेशन बचा हुआ है partial digestion stomach में हो गया था, still the food is not completely digested. The complete final digestion takes place in the ileum. So the bile, the enzymes of the pancreatic juice and enzymes of the small intestine itself, ये तीनों के actions के वजह से there will be a series of reactions that will take place. जो proteins को digest करेगा, carbohydrates को digest करेगा, fats को digest करेगा. And then ultimately all the digested products will be produced in the small intestine in the ileum. Okay, ileum में final products तैयार है. अब ये जो nutrients है खाने के जो digest होके तैयार है इनको पहुंचाना है पूरे शरीर में. So after digestion the next step of nutrition was ingestion, digestion followed by, you remember the 5 steps? Aspiration, assimilation. There is nothing called aspiration. नहीं. Hybrid बना. Absorption. Absorption, yes. Okay, it is absorption. Assimilation. हाँ, तो इलियम में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन. ये न्यूट्रिएंट्स बन के तैयार हो गया, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज. अब इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में डालना है. ओके, एंड वाया ब्लड दिस विल बी पास्ड ऑन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो मतलब डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया. अब जो बच रहा है उसको बोलते हैं काइल. The one which is secreted from the small intestine और वो जाएगा large intestine. Getting it? Okay, तो large intestine में जो जा रहा है उसको बोलते हैं काइल. And the large intestine actually small and large किस हिसाब से बोलते हैं? According to the diameter of the tube. Small intestine का diameter कम है इसलिए small intestine. Lengthwise it is longer. Large intestine diameter is more, length is less. And large intestine is divided into 2 parts. One is colon, other is rectum. Okay, now the colon consists of 3 parts: ascending colon, transverse colon, descending colon. So sequentially the chyle will pass through these 3. ये जो chyle है ना, this hardly contains any nutrients because सब absorb हो गया, digest हो गया.
इसमें मेजॉरिटी जो कंपोनेंट है वो है वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन का क्या फंक्शन है? टू रीअब्सॉर्ब एज मच पॉसिबल वाटर एंड गिव इट बैक टू द बॉडी so that we don't dehydrate. Okay, otherwise the fecal matter would always be very watery, but वैसा नहीं होता. Okay, यहाँ पे वो फंक्शन है कि maximum amount of water is reabsorbed and given back to the body. तो ये ascending, transverse and descending colon में. Okay, तो उसके बाद finally the matter that comes to the rectum is the waste matter which is added. तो रेक्टम का फंक्शन है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द वेस्ट मैटर. जो काइल था वो काइल बन गया, अब जो काइल में से पानी एब्जॉर्ब हो गया उसको बोलते हैं फीसस, एंड दैट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम टेम्पररीली. सो व्हेन द रेक्टम बिकम्स फुल, you know that. Okay, the next role is of the anus, which is the end of the alimentary canal. Here timely intervals as and when the requirement arises, the fecal matter is passed out of the body. Got it? इसको बोलते हैं egestion. ओके, तो एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ जो हो रहा है वो egestion, एंड पूरे शरीर के सारे सेल्स में जो हो रहा है दैट इज assimilation. Okay, where the glucose and the fatty acids are used for providing energy and amino acids are used for creating proteins for the body building. तो कैसे उनको यूज करते हैं या फिर फर्दर स्टोर करते हैं वो assimilation में आएगा. ओके, तो अभी यहाँ पर once you have seen the overview, ingestion is through the mouth. Okay, digestion is in the mouth, the stomach and the small intestine. Absorption is in the small and the large intestine. Assimilation in every cell of the body where the nutrients reach. And for egestion, it is the rectum and the anus. ऐसे करके याद रखो. Got it? पूरा ओवरव्यू समझा अच्छे से. अभी यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा? माउथ, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. That is alimentary canal, because there is one opening called mouth on one end, another opening called anus on the other end. Okay, but salivary glands, liver, gallbladder, pancreas, these will be a part of digestive glands, because ये सारे parts के अंदर खाना नहीं जा रहा है, इनके secretions खाने को ऐड किया जा रहा है. So all this together is called human digestive system. अभी समझा अच्छी तरह से? Okay, so all the parts and the sub parts that you have to remember, which is very important. ठीक है? Okay, so अभी we'll go back to the textbook. You can take a look at the diagram, human digestive system जो दिया हुआ. Just recollect all the parts. Then we have to see the structures and everything again right from the mouth. So coming to the teeth first of all. Okay, so when you talk about the teeth in the mouth, okay, mouth में जो teeth है उसके अगर functions देखा जाए, यहाँ पे start from yeah. Okay, so ये देख. Now tell me one thing. Okay,
What is this portion known as? trachea, Actually, that's the trachea. Correct. What about this? canal, It's the alimentary canal, food pipe. Yeah. Okay, it's the food pipe, esophagus. Okay. What about this? liver, Very good. ये क्या है? lung, ये stomach है. हाँ, it is the stomach. Yes. What about this? ये जो ऐसा पाइप निकला हुआ है स्टमक से. And the cardiac था, कार्डियक ऊपर है. ऊपर है The और वो cardiac. नीचे का. ये फंडस, the main part. ओके. ये जो है ये पाइलोरस. तो उसके बाद क्या है? दिस वन. Small intestine, Duodenum. Okay. Then here you have the jejunum and ileum. Majority part of the small intestine is ileum. उसके बाद this one is the large intestine. Okay. उसमें ये जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, that is ascending colon. This is transverse colon. This is descending colon. Okay. And यहाँ पे आएगा rectum, followed by the anus. ठीक है. तो ये सारे पार्ट्स का लोकेशन समझ में आ गया अच्छे से. Okay, you have understood the entire system of the alimentary canal, right? Okay. Now let us start from the mouth again. ठीक है. अभी पूरा alimentary canal का लेंथ दिया है approximately 8 to 10 meters long. Okay, approximately around 8 meter भी अगर समझते हैं तो you can understand a fully grown adult human being उसका हाइट ही होता है 1 से 1.5 मीटर. तो उसके अंदर 8 से 10 मीटर लंबा एलिमेंट्री कैनाल है. You can imagine how nicely it is fitted inside, right? Can you tell me why it is necessary that alimentary canal has to be so long? Why it is not a short one? Digest ही करना है. फूड पास होने के लिए. तो पास तो छोटा होगा ही होगा ना. तो पास तो होगा ही ना. छोटा होगा तो ऐसे फोल्ड फ्लेक्सिबल नहीं होगा उतना. क्यों नहीं होगा? फ्लेक्सिबिलिटी तो उसके मस्कुलर वॉल के हिसाब से. स्ट्रक्चर तो वही रहने वाला है. There is a reason behind it being so long actually. 8 से 10 मीटर लंबा रहेगा ना तो फूड विल टेक मोर टाइम टू पास थ्रू द सिस्टम. एंड ज्यादा टाइम पास करेगा तो व्हाट हैपेंस इज इट इज एंश्योरिंग कि पूरा पूरा डाइजेस्ट हो जाए. बिकॉज इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इनसाइड. तो एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए टाइम मिल रहा है. गेटिंग इट? अगर छोटा रहेगा तो फटाक से पास होके निकल जाएगा. So there is a high chance that food is not completely digested. So every time there would be indigestion or loss of nutrients from the body without digestion. But ऐसा नहीं होता. A normal functioning body will always digest the food completely, and only the waste matter is passed out. इसीलिए alimentary canal इतना लंबा होना जरूरी है. Okay, so let's start from the mouth. Okay, now technically mouth को बोलते हैं oral cavity या buccal cavity. Okay, it is there in the face. Okay, of course. तो oral cavity का मतलब है, oral मतलब when you say, जैसे हम लोग स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं तो oral एग्जाम दिया ऐसा बोलते हैं ना, right? And buccal, the word buccal stands for cheeks. Okay, you know very well कि there are lips, there are cheeks. Okay, and mouth का जो roof portion है अंदर उसका ऊपर, उसको बोलते हैं palate. माउथ के रूफ को पैलेट बोलते हैं. एंड माउथ के अंदर
जो नीचे वाले हिस्से में, that is our tongue. So you can bang the tongue on your palate. Okay, and internally there is a mucous membrane as well. Okay, now see mucus. You know what is mucus? That slimy secretion, right? You know that. Normally we are aware about this mucus from our nose, especially. जैसे सर्दी जुकाम हो जाए तो you know very well. Okay, but that mucus, okay, it is present throughout our alimentary canal internally. Because फूड को पास करना है तो स्ट्रक्चर जो है सराउंडिंग्स में स्मूथ रहना चाहिए. फॉर दैट रीजन म्यूकस इज प्रेजेंट थ्रू आउट पूरे एलिमेंट्री कैनाल. ओके, एंड देन इंटरनली देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट. सारे ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं वो माउथ कैविटी में ओपन होते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द टीथ नाउ. नाउ वी हैव सी, उसको ह्यूमन डेंटिशन करके बोलते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. ओके, डेंटिस्ट हम दांत के डॉक्टर को बोलते हैं ना वैसे. तो ह्यूमन डेंटिशन इज फाउंड टू बी थीकोडोंट. ये वर्ड्स याद रखना है. ओके, थीकोडोंट का मतलब क्या है कि एवरी टूथ दैट वी हैव इज फिक्स्ड इनसाइड अ सॉकेट. हर दांत का अपना अपना सॉकेट है, इसलिए एक टाइम पे एक दांत टूट के गिर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक दांत टूट गया तो उसके आसपास सारे पियानो की तरह निकल जाते हैं. Getting it? Okay, it is one separate socket for each teeth in the jaw bones. Okay, यहाँ पे 11th में you have another lesson called skeleton and locomotion. Okay, तो उसमें हम लोग पूरा इसका देखेंगे गोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट एंड ऑल. अभी के लिए इतना ही समझ लें कि यहाँ पे जो जॉइंट है बिटवीन द टूथ एंड द गम्स, उसका नाम दिया है गोम्फोसिस. इट इज एन इमूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट. आवर टीथ डज नॉट मूव. गेटिंग इट? वरना कितना अजीब हो जाता है, राइट? खाना खा रहे तो दांत भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, राइट? इट डजंट हैपन. सो दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट. दूसरा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइफियोडोंट. ओके, डाइफियोडोंट का मतलब है इन आवर एंटायर लाइफ स्पैन वी गेट टू टाइप्स ऑफ टीथ या टू सेट्स ऑफ टीथ. बचपन में व्हेन यू आर बोर्न ऑब्वियसली डोंट हैव एनी फर्नीचर इन योर माउथ. यस और नो, राइट? उसके बाद जब धीरे धीरे छोटे बच्चे को दांत आना शुरू होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ. जब एकदम छोटे बच्चे के मुंह में देखा रहेगा गम्स में से इतने इतने से नाजुक से दांत निकल के आते हैं, राइट? एंड दैट टाइम व्हेन इट कम्स दे ट्राई टू बाइट थिंग्स बिकॉज उनको नया नया एहसास होता है ना दांत है करके. सो दैट्स कॉल्ड एज मिल्क टीथ. सो एट अ सर्टेन टाइम इन लाइफ द मिल्क टीथ विल फॉल and then there will be a new set of teeth which is called permanent teeth. तो आज जो अपने पास है वो है permanent teeth. Getting it? So ये दो बार ऐसे हो रहे हैं, एक बार milk teeth, एक बार permanent teeth, and that's why it is called diphyodont dentition. Okay. Thirdly, it is called heterodont. ये तीनों वर्ड अंडरलाइन करना है. Okay, thecodont, diphyodont, heterodont. Heterodont का मतलब है we have permanent teeth में 4 types of teeth. All the teeth that we have are not of the same type. Okay, we have incisors, we have canines, premolars and molars. ऐसे करके 4 टाइप के teeth. Okay, incisors are there in the front. कि अगर कभी चॉकलेट खा रही है, okay, you take a bar of Kit Kat chocolate and दांत में साइड में बाइट कर दो. तो incisors का फंक्शन है biting. Getting it? It is used to bite the food. सलाड वगैरह खा रही है, ककड़ी टमाटर, तो सामने से बाइट कर. ठीक है. कैनाइन्स ऑन द साइड्स, दे आर शार्प टीथ. तो कैनाइन्स का फंक्शन है बाइटिंग एंड टेयरिंग. ठीक है, कि कभी अगर जैसे शुगर केन छिल रहे हैं तो यू आर डूइंग इट थ्रू योर कैनाइन्स. एनिमल्स में कार्निवोरस एनिमल्स में कैनाइन्स आर मच मोर डेवलप्ड because they tear open the flesh of animals and then eat it. टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल वगैरह में देखा रहेगा ऐसे शार्प टीथ लगते हैं. Getting it? Okay. Premolars and molars जो अंदर अंदर होते हैं, they are used for chewing
ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ऐसे करके चारों का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। आर यू अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड विजडम टूथ? व्हाट इज दैट? जरूरत नहीं होता है फिर भी आते हैं। हाँ, दैट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो प्री मोलार्स एंड मोलार्स मैंने बताया लास्ट में, अंदर जॉ में। सो द लास्ट मोलर इन ईच जॉ इज कॉल्ड विजडम टूथ। वो दैट इज द लास्ट टूथ दैट यू गेट इन योर लाइफ, ओके। 20s 30s के एज में आता है, एंड व्हेन इट कम्स समटाइम्स इट इज पेनफुल। तो ऐसा उसको विजडम टूथ करके नाम क्यों दिया है? बिकॉज 20 25 30 के एज में ऐसा मानते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा मैच्योर हो जाता है, ओके। उस टाइम पे दांत आ गया, तो दांत का मैच्योरिटी से कोई मतलब नहीं, इट इज एट दैट एज विच कम्स, इसलिए उसका नाम दे दिया विजडम। अब उस एज में मिल्क टीथ बोलना सही नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज विजडम, ठीक है। बट फिर वो उसको निकाल भी सकते हैं ना। निकाल सकते हैं, लाइक एज सच इट डजंट अफेक्ट, बिकॉज ये लास्ट मोलर है। वो नहीं भी रहा, बाकी सारे दांत बराबर रहे, तो खाना च्यू करने में सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स एन एक्स्ट्रा एडिशन, नथिंग एल्स, ओके। तो बाकी सारे टूथ रहना जरूरी है। तो नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी कम टू, वो है डेंटल फॉर्मूला, ओके। नाउ व्हाट इज अ डेंटल फॉर्मूला? कि इन आवर माउथ ऑल द टीथ विच आर प्रेजेंट इन, ये कितने नंबर में प्रेजेंट है वो हमें फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ओके। सो हाउ डू वी डू दैट? सी, सपोज दिस इज आवर माउथ, मछली लग रहा है बट समझ के माउथ है, ठीक है, ओके। सो वी हैव अपर जॉ एंड अ लोअर जॉ, ओके। तो ये ऊपर वाला अपर जॉ, नीचे वाला लोअर जॉ, इसको मैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, कि अपर जॉ लेफ्ट साइड राइट साइड, लोअर जॉ लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ how many of these teeth that we have? So we have two incisors, okay, two incisors. We have one canine, okay, two premolars and three molars. तो दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर, वो एक साइड पे एक जॉ में। सेम थिंग रिपीटेड हियर, सेम हियर एंड सेम हियर। तो यहाँ पे देख, इंसाइजर 2/2 ऐसा लिखा हुआ है। अपॉन मतलब अपर जॉ लोअर जॉ, ओके। सी फॉर कैनाइन, अपर जॉ लोअर जॉ 1/1। PM मतलब प्री मोलर 2 and 2, molar is 3 and 3. So we have 2 1 2 3, 2 1 2 3. Okay, so 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. यहाँ एक साइड में है 8, इधर भी 8, okay. So on each jaw we are having 16 teeth. तो ऊपर नीचे मिलाकर हो गया 32. Understood? That's called dental formula. Okay. Now in the case of small children, okay, the three molars are not fully formed. वो बाद में बनते हैं, okay. So ये जो 3 into 4 that is 12, ये 12 दांत जो होते हैं वो बच्चों में नहीं रहते। So it is 2 1 2 0 in the case of children. So totally children have 20 teeth and adults have 32 teeth. And wisdom tooth आने के पहले 28, because last molar है ना, तो दोनों साइड में एक एक विजडम टूथ बाद में आता है, so then it is 20. 32 is the fully formed number. Getting it? ये सारे नंबर्स वगैरह याद रखना है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है कि द नंबर ऑफ premolars in our mouth is dash. When nothing is given, it is assumed that we are talking about adults. So in an adult mouth,
how many premolars are there? 2. Totally. Total number of premolars in the mouth of an adult. 8. ये जो नंबर है उसको इंटू 4 करना है. ओके, बिकॉज मैथ्स के हिसाब से क्वाड्रेट्स बनाते हैं ना, वैसे. हाँ. राइट, तो एक साइड में अगर 2 है तो चारों मिलाकर 8. सेम वे अगर कितने मोलार से पूछेंगे एडल्ट में, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12. 12. ओके, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द टीथ विच इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन एन एडल्ट माउथ इट इज मोलार्स. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे समझा डेंटल फॉर्मूला का मतलब. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, अ सिंगल टूथ. कभी दांत का दर्द हुआ है? हर किसी को एक आध बार तो होता ही है, राइट? यस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरल हाइजीन? ब्रश करना अच्छे से. बेसिक क्लीनलीनेस एसोसिएटेड विद द माउथ एंड द टीथ, है ना? तो ब्रश करना जरूरी है. दिन में कितना बार करना चाहिए? 2 बार. 2 बार, सुबह एंड रात को, राइट? स्पेशली रात को जो ब्रश करते हैं वो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिन भर हम खाए पिए रहते हैं, है ना? एंड आफ्टर एवरी मील्स वॉट एवर यू ईट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिंस योर माउथ properly, because food particles and all should not be stuck anywhere. Otherwise, you know something called cavity, decay, हाँ. ये सब ज्यादा होता है, especially if you have more of carbohydrate food, है ना? चॉकलेट. चॉकलेट, हाँ, बंगाली स्वीट्स कैसे भूल सकते हैं? राइट. So if you have too much of carbohydrates, so that can lead to decomposition very fast. Because mouth एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. Because it's a moist environment, it is comparatively warm, and there is lot of nutrition available. तो हमें वो केयर करना है कि इतना सारा माइक्रोब्स को सर्वाइव ना करने दे. That's why oral hygiene is a must. Okay, तो अभी याद है दांत का स्ट्रक्चर कैसा है अपना. ओके, नाउ द टीथ आउटरमोस्ट पोर्शन जो गम्स के बाहर नजर आता है उसको बोलते हैं क्राउन. दैट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड क्राउन. ओके, एंड जो गम्स के अंदर गड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द रूट. सो टू मेन पोर्शंस ऑफ द टूथ आर द क्राउन एंड द रूट. ओके, नाउ इन द क्राउन वी हैव द आउटरमोस्ट व्हाइट कलर्ड पार्ट. नॉर्मली दांत का क्या कलर रहता है? व्हाइट, बट समटाइम्स यू सी सम अदर शेड्स आल्सो. हाँ. यस, बट येलो. मैंने पढ़ा था किधर कि दांत का रियल कलर थोड़ा सा येलोइश रहता है. ऑफ व्हाइट बोल सकते हैं, स्लाइटली ऑफ व्हाइट तो येलोइश कह सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली व्हाइट. अभी येलो जो हम लोग कभी कभी दिखते हैं वो नॉट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल कलर, वो बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक एस्पेक्ट. ओके, सो अभी यहाँ पे जो आउटरमोस्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द एनामल, एंड एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द एंटायर बॉडी. ये भी याद रखना, पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो अपने दांत में है, वो है एनामल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड एनामल के नीचे यू कैन सी दिस शेडेड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द डेंटाइन. डेंटाइन इज आल्सो अ हार्ड पोर्शन, एज हार्ड एज अ बोन. और एनामल जो है वो बोन से भी ज्यादा हार्ड है. तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सूटेबल है. डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द एंटायर बॉडी एंड दैट इज एनामल. तो इसके लिए अपने डाइट में कौन से मिनरल्स जरूरी है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, एंड फॉर टीथ मोर इम्पोर्टेंट इज फ्लोरीन. इसलिए टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोरीन रहना चाहिए. अगर फ्लोरीन का डेफिशिएंसी हो गया तो योर टीथ विल बिकम ब्रिटल, टूट सकते हैं. ओके, एंड डेंटाइन इज अनदर हार्ड पोर्शन. तो नेचर ने कितना अच्छे से बनाया देखना, मिनरल्स वगैरह डालकर ऐसा एक हार्ड स्ट्रक्चर बना दिया विच विल हेल्प
to bite, the cut, chew the food, crush the food, grind the food, and then help you to swallow. So, yeah, dentine. Inside the dentine, there is this portion called the pulp. It's a soft portion. Okay, and from the pulp, which is present between the crown and the root, you can see there are connections going inside. यहाँ पे देखना root canal. Then there are nerves and blood vessels. Because दांतों को भी blood supply चाहिए, and दांतों में nerves भी होना चाहिए. Nerves है इसीलिए दांत में दर्द होते हैं. Because nerves are responsible for sensation. Okay, तो दांत इतना कड़क है, but उसके अंदर nerves है. That's the reason you feel the pain. And when the teeth pain, you know very well how it happens, how it feels. है कि नहीं? Especially जो pain होता है वो premolars and molars वाले में परेशान करते हैं. Incisors canines में ज़्यादातर नहीं होते, right? Because that is where the teeth surface is such a way that there can be lot of decomposition, decay, cavities and all possible. Incisors canines में ज़्यादा टिकता नहीं. एंड अगर ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं किए तो दांत में सरफेस पे होल बनेगा, उसके अंदर फिर डीके बढ़ेगा, माइक्रोबियल डीके वगैरह सब. तो देन द प्रॉब्लम विल एस्केलेट फर्दर. ओके, तो एकदम माइल्ड लेवल पे रहा, दांत दर्द ठीक हो गया तो ठीक है, बट अदरवाइज इफ इट एस्केलेट्स मोर, फिर डेंटिस्ट के पास जाके सर्जरी वगैरह करवाना. दे डू समथिंग कॉल्ड रूट कैनाल, यू नो दैट, कि वो दांत को पूरे रूट्स के साथ उखाड़ देते हैं. नाउ यू नो दिस. ओके, गम्स को ऐसा सेपरेट करके पूरा रूट्स के साथ, बिकॉज सिर्फ ऊपर का क्राउन पोर्शन अगर निकाल दिए तो अंदर तो रह ही जाएगा ना. तो अगर निकालना हो तो पूरा निकाल. दैट्स व्हाट डेंटिस्ट डू. एंड डेंटिस्ट कैन आल्सो रिप्लेस विद आर्टिफिशियल टीथ, वो सब पॉसिबल है. ओके, दैट्स कॉल्ड रूट कैनाल. तो ये रूट्स बहुत जरूरी है. एंड इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग आल्सो. कभी कभी हो जाता है अपने आप अपने दांत गिर जाते हैं, या कभी कभी दांत ऐसे हिलना शुरू हो जाते हैं, खाना खा रहे तो टिंग टिंग चालू है, वाइब्रेशन. ये एक ऐसा टाइम आएगा टड़ा, राइट? So many possibilities are there, right? But teeth is a very important part. इसका स्ट्रक्चर समझना है, इसका फंक्शन भी समझना है, एंड इसको मेंटेन करना भी जरूरी है. ठीक है, समझा टीथ के बारे में अच्छी तरह से. यहाँ पे कंपाउंड्स के नाम याद रख. एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. दैट्स द कंपाउंड. ठीक है, ऑल दिस पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड. ठीक है, एंड जो डेंटाइन है, डेंटाइन इज मेड अप ऑफ अ बोन लाइक सब्सटेंस जिसका नाम है सीमेंटम. डायरेक्ट सीमेंट बोलना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए सीमेंटम. ओके, दैट इज इन द डेंटाइन पोर्शन. ठीक है, so these names you have to remember. Okay, any doubt in the teeth? टीथ के बारे में सब देख लिया. डेंटिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नंबर हो गया, फंक्शंस हो गए. बेबी टीथ में वैसे चॉकलेट खाने से कीड़े हो जाते तो ज्यादा हो जाता है, वो बिकॉज तो खुद ही निकल सकते हैं, बिकॉज वो बहुत नहीं, छोटे भी रहते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं ना. और वो खुद ही निकल जाते हैं ना. निकल जाते हैं, खुद से निकल जाते हैं. सी, अगर इम्यूनिटी लेवल देखा जाए ना, बेबीज में ज्यादा रहते हैं, बिकॉज एकदम नए नए आए थे ना, फ्रेश, तो दे हैव वेरी गुड इम्यूनिटी. ओके, एंड दे आर स्पेशली डिपेंडेंट ऑन द मदर्स मिल्क, तो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वहां से मिलता है. ओके, एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक कि बहुत एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट को, तो उनका लिमिटेशन ज्यादा रहता है. दैट्स व्हाई. ओके, या देन कमिंग टू आवर टंग. ओके, सो वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग. ऑफ कोर्स उसमें बोन तो होता नहीं है, राइट? अच्छा है ना, बोन वाला टंग नहीं दिया, वरना अजीब सा हो जाता है. राइट? सो उसमें क्या होता है? मेनली मसल्स. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, अ फ्लैशी ऑर्गन एंड रफली ट्रायंगुलर. ओके, सामने जो आता है वो है फ्लैप वाला स्ट्रक्चर. तो पूरा टंग अगर निकाल के देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर सा अपीयरेंस रहेगा. ठीक है, सो टंग कहाँ पे लोकेटेड है? जो अपना बकल कैविटी का फ्लोर है माउथ में, दैट इज वेयर द टंग इज रेस्ट, राइट? एंड टंग का जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज दैट?
टेस्ट करना फूड। Okay. Functions of the tongue. Okay. The first main function is taste. The tongue contains nerve endings, जिनको receptors बोलते हैं, which is able to detect the taste of the food. Okay, how many types of taste do you know? sour, Sour, sweet, sweet, bitter, bitter, spicy, spicy. Any other? चट चटपटा रहता है ना, तीखा चटपटा मिक्स। Astringent, pungent. There are 6 such tastes. इंडिया में तो कल्चर में अपना आयुर्वेदा बहुत फेमस है ना, तो आयुर्वेदा में बोला गया कि 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं. Okay, the 4 which you said, and astringent and pungent. Okay, now can you tell me कि खाना जब हम खा रहे हैं तो उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, डाइजेस्ट करते हैं तो पूरे शरीर को वो वैसे भी चाहिए, तो इसमें ये टेस्ट क्यों चाहिए? क्या हो जाएगा अगर कोई टेस्ट हमें पता ही ना चले, जिस खा लिए, शक्कर खाए, खाने में नमक मजा खाए, नहीं मिर्ची आता। खाए. तो खाने का मजा मतलब कैसी, अगर मजा नहीं है खाना तो खाना ही है हमें. तो नेचर ने ये टेस्ट वाला फिनोमिनन क्यों डेवलप किया? अब मजा नहीं आएगा तो टेस्ट दिया तो ज्यादा खाते हैं इसलिए। ज्यादा खा लेते हैं. दैट्स द थिंग. हाँ, सी, okay, imagine a situation when you get fever. जब बहुत बुखार हो जाते हैं, तो स्पेशली जब सर गर्म हो जाता है, तो यू नो वेरी वेल कि खाने का कोई टेस्ट नहीं आता. एवरीथिंग इज वेरी ब्लैंड फॉर यू. एकदम चटपटा पाव भाजी भी ला के देते एकदम रबर जैसा लगेगा. राइट. सो दैट टाइम व्हाई डज दैट हैपन? फीवर के टाइम पे क्यों ऐसा टेस्ट नहीं आता खाने का? वो टेस्ट के लिए जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते। जो फीवर होता है का मतलब क्या है कि यह हाँ, बॉडी टेम्परेचर राइजेस. हाँ, राइट. तो जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हाई टेम्परेचर में नर्व एंडिंग्स का जो रिसेप्टर्स है वो नहीं फंक्शन करते. दैट इज द एक्चुअल साइंटिफिक पार्ट. ओके, कि द नर्व एंडिंग्स और द रिसेप्टर्स कैन नॉट फंक्शन एट हाई टेम्परेचर. तो टेस्ट बड्स होते हैं अपनी जगह पे इन द टंग. ओके, दे आर नथिंग बट द रिसेप्टर्स, द नर्व एंडिंग्स. बट वो टेस्ट कर नहीं पाते बिकॉज वो इन्फ्लेम हो गया हाई टेम्परेचर. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा अगर रहेगा शरीर का टेम्परेचर, तो वो नहीं कर पाते. इवन वाइल ईटिंग फूड, हम लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग गर्म खाना खाते हैं, पसंद करते हैं, बट वो भी एक लिमिट से ज्यादा गर्म हम नहीं खा सकते ना. कि सपोज चाय कॉफी पी रहे हैं और एकदम चटाकेदार गर्म, यू डिडंट सी एंड यू जस्ट हैड इट, क्या होता है? मुंह में कुछ अजीब सा हो जाता है. फायर ब्रिगेड अलार्म. जीभ जल जाता है, उसके बाद भी टेस्ट नहीं आता है, वो हाँ, जलता रहता है। ये सो एकदम अजीब सा जलता रहता है ना. हम तोतले जबान में बात करते हैं थोड़ी देर के लिए. राइट. सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेम्ड टेस्ट बड्स. तो ये सारी चीजें हम देखते हैं अपने डेली रूटीन में, है कि नहीं? राइट. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट इज दैट, एज यू सेड, कि टेस्ट के वजह से कैसे है कि हम खाना ज्यादा खाते हैं. दैट्स करेक्ट. बट एट द सेम टाइम अगर खाने का टेस्ट हमें अच्छा लगे, so we will feel like eating food, and at the same time it will induce our stomach and intestine to produce more digestive juices. वो भी उतना ही जरूरी है. तो डाइजेशन बेटर होगा. अगर टेस्ट हमें पता ही ना चले, एवरीथिंग इज वेरी ब्लैंड एंड इक्वल टेस्ट, तो डाइजेस्टिव जूसेस वो स्टिम्युलेट नहीं होगा ना प्रोड्यूस करने के लिए, तो डाइजेशन विल बी अफेक्टेड. तो नेचर ने इसीलिए टेस्ट करके दिया हुआ है कि you like some food, you dislike certain food, so that's how you decide what to eat. Okay, so taste is a very important function. It is significant from digestive system point of view. ठीक है. Then
टेस्टिंग के बाद होता है इवन फॉर मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. When the food is in the mouth, जब वो chewing and grinding वगैरह हो रहा है, तो mixing the food with the saliva is also very important, ताकि swallow करने में आसानी हो. So imagine the time when you are eating something, the food is in the mouth, तो टंग कैसे इधर उधर खाने को रोल करता है, मिक्स करते हैं. You do that, right? So that time the tongue is the one which is involved in mixing and what you can say food with the saliva to make it soft. Okay, and there is one more function of the tongue which is as such not associated with nutrition, but वो भी tongue का ही function है. Okay, later on you can try if possible, you can hold your tongue and try to speak something. Will you be able to speak? नहीं, बस आवाज आएगा ध्यान. Right, it is not possible to do it. So that means tongue का function क्या है? It helps in speaking. While you are speaking, your tongue moves accordingly, so that अंदर voice box से जो आवाज आ रहा है वो modulate हो रहा है, वो regulate हो रहा है. So tongue plays a role in that. जैसे अभी हमने बोला कि चाय कॉफी गर्म पी लिए है ना, तो उसमें कैसे बात करना मुश्किल हो जाता है, बात अजीब सा हो जाता है. यस, बोल यू टेलिंग समथिंग. वो जिनको ठीक से बोलने नहीं होता, मतलब ये रहते ना हाँ. बच्चे टाइप बोलते तो यस, वो क्यों बोलते? वो स्टैमरिंग यू आर टेलिंग, राइट? वो अलग प्रॉब्लम है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. ओके, कि मतलब नर्व्स, सी व्हेन यू आर टू स्पीक समथिंग, when you have to speak something, okay, it has to be regulated by your brain. Brain हमें ऑर्डर देना चाहिए कि open your mouth and speak this. Getting it? Now if somebody is asking you a question, what is your name, your answer will not be human nutrition. Getting it? Okay, so your brain tells you what you are supposed to say, how loud you are supposed to say, how low you are supposed to say. Getting it? So speaking is very much under the control of the brain. तो स्टैमरिंग वाले कंडीशन में वो नर्व्स का ही प्रॉब्लम कि वो एकदम ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो है वो बराबर से नहीं जाते. दैट्स व्हाई देयर इज स्टैमरिंग. दे कैन नॉट डू इट पर्पसली. गेटिंग इट? वो अलग कंडीशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल. ठीक है, समझा टंग के बारे में अच्छे से, राइट? एंड देन देयर इज द फायरिंग्स. अभी सलाइवा यहाँ पे नहीं दिया था. ओके, वी विल कम टू दैट. ठीक है, ओके, पहले सलाइवा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? So now talking about the saliva, okay, see, we have salivary glands which are 3 pairs. Okay, 3 pairs of salivary glands. ठीक है, 3 pairs मतलब each one 2 of them, तो 6 हो. Okay, तो सबसे पहला जो salivary gland है उसका नाम है parotid. Okay, it's called as parotid gland. ठीक है, where are these parotid glands present? यहाँ पे कान के नीचे. Okay, उसको parotid glands बोलते हैं. So there are 2 of them on either side, and say salivary gland कैसा रहता है? Almost spherical in structure with a duct. तो सलाइवा को बाहर सिक्रेट करते हैं, and that duct opens into the mouth cavity. तो यहाँ कान के नीचे ये पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इनके डक्ट माउथ में ओपन होता है, तो सलाइवा पोर करते हैं. ठीक है, सेकेंड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स. Okay, sublingual is the one which is present below the tongue. Okay, sub मतलब below,
Lingual is language. Language is something which you speak with the help of your tongue. इसलिए sublingual. Okay, there are two of them below the tongue. And the third one is submandibular glands. Okay, mandible एक बोन का नाम है, जो अपने लोअर जॉ का बोन है ना, उसको मैंडिबल बोलते हैं. And in the entire face, this is the only bone which can be moved. Imagine that. कि पूरे फेस में दूसरा कोई बोन हम मूव नहीं कर सकते. When you are speaking, it is only the lower jaw which comes down. पूरा अपर जॉ ऊपर नीचे करते हैं क्या? नहीं, right? When you are speaking, when you are chewing something, it is only the lower bone which is moving. So वो mandible है, the only movable bone in your entire face. So submandibular मतलब in the mandibular region, under that. वहां पे अपने तीसरा पेयर ऑफ salivary glands present. ये नाम याद रखो. Okay, नाम बोल, repeat कर. First one, parotid glands, correct. Second one, sublingual glands, yes. Third one, submandibular मंडी नहीं, glands, mandibular. ये सब्जी मंडी नहीं है. Okay, it is submandibular. mandibular. Okay, ये तीन अपने salivary glands हैं. Okay, so, structurally, functionally they are the same. उनका locations अलग है सिर्फ. ठीक है. Now, when the salivary glands, they produce something called saliva. Okay, and your mouth always consists of saliva. Mouth is not dry, right? So saliva क्यों produce होता है? And what does the saliva contain? कभी कभी हो जाता है ना dry. हाँ, हो जाता है, but एकदम जीरो पे नहीं जाते. Like एकदम ऐसा रेगिस्तान नहीं बन जाता ना. Right? There is some bit of saliva present, right? So why is the saliva present? होगा, हमने किया है. क्या? क्या हुआ? अब मुंह खुला रखोगे ना जब 5 मिनट के लिए, हाँ, तो पूरा एकदम कुछ भी नहीं रहता. हाँ, वो सूख जाते हैं, but there is little bit of saliva always present. हाँ. वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता. वेरी लिटिल माइट बी प्रेजेंट. कभी एकदम गर्मी के मौसम में बाहर एकदम धूप में घूम रहे हैं, तो यस, द सलाइवा अमाउंट इज वेरी लेस. दैट्स व्हाई यू डिहाइड्रेट. दिस इज वन वे इन व्हिच वी कैन डिहाइड्रेट, नो, कि लॉट ऑफ सलाइवा लॉस फ्रॉम द माउथ, राइट? तो सलाइवा क्यों प्रोड्यूस होता है? क्यों बनता है सलाइवा? वो फूड को च्यू करने, इजीली स्वॉलो करने के लिए. यस, यस. तो मिक्सिंग and easy swallowing. That is the one main function, correct? Secondly, makes food moist. जो भी हम खाना खाते हैं, हर तरह के खाना खा लेते हैं. Sometimes the food is already moist, sometimes it is dry, है ना? जैसे बर्फी पेड़ा वगैरह खा लिए, right? You never know, right? अभी तेरा 10th का रिजल्ट आएगा तो पेड़ा ला के देगी, तो खाएंगे, तो वो ड्राई रहेगा. Right? So it makes the food moist. Okay, it helps to mix and easy to swallow. Okay, thirdly, saliva also has got antimicrobial properties to some extent. Not very strong, but to some extent. कि हम लोग जब खाना खाते हैं, even if we take care of our hygienic aspect, you never know, sometimes, okay, there might be some harmful germs that might enter with the food. So some degree of protection is required. That is given by the saliva. कि माउथ में ही उसको थोड़ा सा खत्म कर दे. ठीक है. Then next is partial chemical digestion. Okay, now what is this? Saliva में एक एंजाइम होता है, okay, जिसका नाम है salivary amylase. ये याद रखना. The saliva contains an enzyme called salivary amylase, जिसका दूसरा नाम है, how do you pronounce this? Ptyalin.
P silent है. It is simply called ptyalin. Ptyalin. Okay. P silent है ptyalin. अब इंग्लिश में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें लेटर डालते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है उसके बारे में. Okay, that's a different story. We can discuss anytime later. Okay, but यहाँ पे इसका नाम है ptyalin. Okay, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो ptyalin करते रहते हैं, बोले ऐसे कुछ नहीं है, it is only ptyalin. ठीक है, that is salivary amylase. तो ये जो salivary amylase है या ptyalin है, this will act upon starch. So if the food that you eat contains starch and it is slightly broken down to maltose. ओके, ये पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है ये माउथ में होता है सलाइवा की वजह से. ओके, एंड जितना भी स्टार्च हम खाते हैं जरूरी नहीं है कि सबके सब माल्टोस में कन्वर्ट हो जाए, बट टू सम एक्सटेंट. ओके, अभी इसको समझने के लिए क्या कर सकते हो पता है, व्हीट के दाने जो होते हैं गेहूं, यू कैन टेक 1 or 2 grains and you can just keep it in the mouth. Okay, now wheat contains starch and starch is not sweet to taste because वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो टेस्ट स्वीट नहीं आएगा, इट इज नॉट अ शुगर. ओके, so when you keep the wheat grain in your mouth initially you won't get any taste, बट माउथ में ही सलाइवा से कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे जो साइलिन की वजह से जब डाइजेशन होगा, डू नॉट swallow it, फिर तो क्या अंदर. ओके, माउथ में ही सलाइवरी अमाइलेज की वजह से जब पार्शियल डाइजेशन होगा एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म माल्टोस, then slowly you will start getting the sweetness because maltose is a disaccharide, a sugar. इसका sweetness हमें पता चलेगा. That is an indication that mouth में there is digestion taking place where the ptyalin is converting or breaking down the starch to form maltose. ये उसका function. Okay, ये point very important है. Chemical digestion, this step takes place in the mouth because of the saliva. ठीक है? Are you aware about something called mouth watering? What is that? हिंदी में बोलते हैं मुंह में. फूड्स को देख के, हाँ. डिलीशियस फूड्स को देख के होता है. Yes. Is it always because of delicious food? Suppose you have eaten full very nicely, पेट भरा हुआ है, and that time your most favorite food is kept in front of you. Does the mouth watering take place? नहीं. नहीं, no. That means what is the condition? जब ज्यादा भूख लगती है. Yeah. So it is a indication. It is an indicator. Okay, that you are hungry. Your stomach is giving you missed calls. Okay, and at the same time, your most favorite food is in front of you. Now, when you are hungry, okay, दिमाग में खाना खाना करके चल रहे हैं, and आसपास कुछ बहुत अच्छा बन रहा है, उसका एकदम से खुशबू आ गया. So what happens? You know very well. स्मेल की तरफ से. Ah. Right. So that is mouth watering. कि suppose you are very hungry and to station के यहाँ द्वारका होटल के बाहर से जा रही है. द्वारका में you must have seen बाहर पाव भाजी का तो जानबूझकर वो लोग बाहर ही बनाते, देखा रहेगा. हाँ. रेस्टोरेंट पूरा स्मेल फैल जाता है वो रूम में. So even if you are not planned to visit a restaurant, you will automatically go inside, right? कि उसने इतने बड़े तवे पे सब्जी का एकदम से तड़का मारा, you get that smell, and फिर वो बटर 1 किलो लादी लाकर उसके अंदर घसरते रहते, right? So the look, the smell, the what you can say, sometimes even the sound, वो जो एकदम तड़के वाला करके स्मेल आता है ना, that also simulates, right? So all the sense organs are involved when it comes to digestion. And इसीलिए ऐसा बोलते हैं, कल्चरली वो करेक्ट है कि जैसे हम लोग हाथ से खाना खाते थे, अभी देर बाद में स्पून कांटा छुरी पता नहीं क्या क्या सब आ गया, राइट? बट इंडियन कल्चर में कैसे हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट scientifically also, because when you touch the food you are able to sense the texture. जैसे रोटी तोड़ के खाते हैं तो पता चलता है रोटी नरम है,
ये सोचो अगर फोर्क एंड नाइफ यूज करके रोटी खाएं तो यू आर नॉट गेटिंग दैट सेंस। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अजीब लगेगा ना, पिज्जा थोड़ी एक ऐसा ही तो लेके टेस्टी। खाएं। हाँ वही। सम ऑफ द फूड्स यू कांट अवॉइड, जैसे सूप हाँ वगैरह पी रहे तो हाथ वो से लेके नहीं पी नूडल्स। सकते, यू हैव टू यूज द स्पून, राइट? हाँ Okay, so but as far as possible it is always advised to use the hand बट because फिर फॉरेनर्स तो इससे खाते हैं ना, स्पून से सब तो कुछ। पूछ मत, तो सब कुछ स्पून से खाते। इमेजिन द चाइनीज पीपल, चॉपस्टिक। चॉपस्टिक, हाँ चॉपस्टिक से चावल चॉपस्टिक से खाते हैं। राइस खा के खाए। यस, वन ऑफ माय प्रोफेसर जब पीएचडी के टाइम पे उनके साथ था मैं, तो वो रिसर्च के काम से अलग अलग कंट्रीज के टूर करते रहते थे, तो ही इज अ प्योर वेजिटेरियन एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू गो टू चाइना। ओके, उनके उधर स्नैक्स भी नॉन वेज रहता है। यस, तो ही हैड टू स्पेंड अराउंड अ मंथ, 1 या 2 महीने का टूर था, चाइना में रहना था उनको, एंड बेचारे प्योर वेजिटेरियन। तो बोले चॉपस्टिक से चावल कैसे खाएंगे, एंड इट इज वेरी वाटरी। हम लोग कैसे चावल खाते हैं, दाल मिक्स कर लिए, सांभर हाँ मिक्स कर लिए, तो एटलीस्ट द ब्लेंड इज प्रॉपर, ये खाने जैसा रहे। वहां पे ऐसा नहीं। ओके, इन देयर कल्चर दे माइट बी जस्टिफाइड, बट हमें नहीं जमेगा। चॉपस्टिक से कैसे उठाते हैं, हाँ वो तो डांडिया के दो डंडे की तरह होते हैं, हाँ। है कि नहीं? तो उसमें से चावल उठाया नहीं जा रहा है, राइट? तो ही वो वाज, कुछ बड़ा फूड तो भी उठ जाएगा, हाँ वही, छोटा छोटा ग्रेन्स के साथ। एग्जैक्टली। एंड हमारे इसमें कल्चर में कैसा है कि वॉट एवर वी टेक इन अवर प्लेट वी फुल्ली कंप्लीट इट, वी डोंट वेस्ट। हम्म। वहां पे ऐसा नहीं है, जो हाँ इतना सारा बाउल में सूप जैसा रहेगा जिसमें चावल रहेंगे, वो सिर्फ चावल खाते हैं, सूप को डिस्कार्ड करते हैं। दैट्स हाउ दे कंज्यूम इट। ओके, सो एनीवेज अदर कंट्रीज एंड ऑल दे हैव देयर ओन कल्चर। और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो मेजोरिटी तो ब्रेड एंड चीज ही है, हाँ। एंड वो भी सब प्री पैक उनको है। प्रॉब्लम नहीं होता फिर। उनके कल्चर में उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वही चलता आ रहा है, राइट? अभी इंडिया में ही देखना, नॉर्थ साउथ में कितना डिफरेंस है, इवन ईस्ट वेस्ट में भी अगर देखा जाए। हाँ नॉर्थ में अगर जाते हो तो मैक्सिमम ये पराठे, पूरी, यही चलते हैं। हाँ। साउथ में जाए तो अपना इडली डोसा उपमा वड़ा चलते हैं, राइट? तो ये कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज हाँ वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन मैटर करता है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ठंडी ही रहता है, तो ऐसे में इतना हैवी फूड हाँ खा सकते हैं। साउथ में तीन ही सिस्टम है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। ओके, so हाँ that's why what happens, they can have this kind of fermented food. अभी नॉर्थ वाले अगर इतना डोसा वगैरह खाएंगे ना, उनको ऐसा लगेगा कुछ खाया ही नहीं, हल्का हाँ है ना? लाइक आई वाज एट देहरादून, तो मैंने देखा था वहाँ पे कि तो अभी डोसा वगैरह बोले ना, तो ऐसा लगता था इट इज लाइक अ स्टार्टर फॉर देम, हमारा पूरा नाश्ता खाना हो जाता है उसमें। so even in people in living in South India, they cannot have this rajma, paratha and all, हाँ too heavy for them. तो ये लोकेलिटी के हिसाब से, इवन चाइना में भी अगर देखा जाए इतना सारा नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, एंड दैट तो इवन पार्शियली कुक्ड या हाफ कुक्ड ऐसे भी खा लेते हैं। वो अंडा रहता है ना, वो कच्चा खा जाते हैं। ओके, वी कैन नॉट इमेजिन। ओके, यहाँ पे माउथ वाटरिंग वाला सिस्टम नहीं है इसमें, राइट? तो नहीं है। राइट, तो इसमें क्यों ऐसा हो जाता है? द रीजन इज कि उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से दे कैन सर्वाइव। हम्म। एनिमल फैट वगैरह वो डिपॉजिट कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर उतने ठंडी में, बट वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट फॉर इंडियंस, हाँ है कि नहीं? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एक लोकेलिटी, द ज्योग्राफी, द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इवन सम जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो कम इनटू पिक्चर। तो एक दूसरे के कल्चर को इतना इजीली हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जैसे मैं बचपन से यहीं बॉम्बे में रहा हूँ, दो आई एम अ साउथ इंडियन, बट जब मैं अचानक से देहरादून चला गया, आई यूज्ड टू स्टे विद अ पंजाबी फैमिली। मेरा एक पेइंग गेस्ट, मेरा अपना रूम था, तो दिन के 2 टाइम का खाना मैं उन्हीं के घर का ही खाता था, वो जो आंटी अपने घर के लिए बनाती थी, इवन आई यूज्ड टू हैव दैट। बहुत अच्छा था, घर का खाना था। पंजाबी खाना क्या चाहिए इससे ज्यादा, राइट? दैट्स हाँ व्हाई आई वेंट हाफ अ सेंचुरी, आई केम बैक फुल सेंचुरी। बट क्या करें, लाइक व्हेन आई हैड टू बी ओवर देयर आई हैड टू एडजस्ट, राइट? तो हाँ। डेली मुझे नाश्ते में 2 पराठे देती हूँ, एंड वो 2 पराठे हाँ निपटाने के लिए आई टेक अराउंड 1 आवर टाइम। खाया हाँ, जा रहा हूँ, बड़े खाए जा रहा होते हैं हूँ, बहुत। चबाए जा रहा हूँ, इट इज टेकिंग सो मच टाइम फॉर मी, राइट?
बट वहां पे कैसे जितने टाइम में मैं 2 पराठे खा लेता था वो लोग 5 पराठे खत्म करते। दैट वाज द प्रॉब्लम। सो it depends on a lot of factors, right? But when you travel more, when you explore more, अलग अलग जगह पे रहकर देखते हैं तो you understand, and that variety is also very important because body adapted रहना चाहिए। कभी लाइफ में दूसरा कहीं शिफ्ट होना पड़े, जाना पड़े, हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से नहीं जम रहा बिल्कुल, right? Of course I'm not हाँ talking about an extreme extent like China and all, but to some extent at least there has to be flexibility, right? That is very important. अभी इन योर एंड बंगाली, यू आर अ बंगाली, राइट? हम्म, तो बंगाल हाँ साइड में सब मैंने देखा है कि स्वीट्स बहुत ज्यादा खाते हाँ हैं, राइट? तो जब मैं वहां पे गया था अपने दोस्त के यहाँ पे, तो एक ट्रे में तीनों उनके, टाइम सीखते हैं। हाँ मतलब सुबह चाय के टाइम पे भी स्वीट खाना। आई सॉ दैट इन दैट हाउस हाँ कि चाय रखे थे और मीठा रखे थे। मैं बोला ये मिठाई खा के चाय पीऊँ कि चाय पी के मिठाई खाऊं? दैट वाज अ बिग हाँ, वो स्नैक्स और मिठाई भी देंगे उसमें। यस। लंच एंड डिनर में भी बिना मिठाई नहीं चलते, राइट? हाँ, स्वीट रहते हैं वहाँ स्वीट पे। बहुत चलता है वहाँ पे। यस, इट इज देयर कल्चर, है कि नहीं? वहाँ पे चल जाते हाँ हैं, बट बाकी हम लोग इतना नहीं खा सकते स्वीट, राइट? एंड तुम लोग के यहाँ पे वो जो स्वीट होता है वो बहुत ज्यादा रस वाला भी रहता है, रस कुछ हाँ है ना, दैट नॉट हाँ राइस, सो इट इज मोर ऑफ शुगर कंटेंट। हम्म, तो बट पता दैट्स नहीं इट। डाइजेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज तुम लोग के वहाँ पे वो कल्चरली चलते आ रहे हो तो यू आर हैबिचुएटेड टू इट। हाँ, मैं इधर तो मुझे सिर्फ एक ही जमता है, मैं ज्यादा नहीं खा सकती, पापा खा लेते हैं ज्यादा। अरे वाह! सो आई होप आई गेट टू विजिट यू सून, मुझे भी मिलेगा बंगाली स्वीट। हाँ है ना? सो दैट्स व्हाट सी सलाइवा का यहाँ पे क्या रोल आ रहा है कि एवरी कल्चर हैज गॉट इट्स ओन सिस्टम। तो नेचर ने ऐसा बना हुआ है कि इफ एट ऑल समथिंग यू लाइक टू ईट एंड इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, तो योर माउथ विल वाटर। माउथ वाटरिंग का मतलब क्या है? the six salivary glands will come into action and they will start pouring saliva in your mouth, anticipating कि अरे खाना आ रहा है, माउथ को तैयार रखो, खाने का स्वागत करो, ताकि अच्छे से swallow करके डाइजेस्ट करो। Okay, so this is all something nature has created so nicely. Yes or no? कभी ऑनलाइन में जाके वीडियोस देखना, पाव भाजी बना रहे हैं या कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बना रहे हैं, वो देखते देखते अपना ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। Yes or no? Right? So that is very important. The salivary glands and the saliva. समझा functions अच्छी तरह से? Okay. Now pharynx is something I think we have already discussed. ठीक है, कि ये कहाँ प्रेजेंट है, कैसा है? इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ओके, एपिग्लॉटिस करके फ्लैप होता है, सॉरी। एंड दिस इज द वन दैट रेगुलेट्स कि द एयर दैट यू ब्रीथ should go into the windpipe and the food that you eat should go into the food pipe, the esophagus. Okay, इसलिए swallowing का दूसरा टेक्निकल नाम है deglutition. Okay, now there is something called uh, vomiting. What is that? डाइजेस्ट नहीं होता है या तो कुछ, Not मतलब exactly. जो खाया रहता है वो Indigestion वॉमिट हो is one जाता reason. Indigestion is one reason कि vomiting हो जाए. But is that the है। only हाँ, reason? और क्या क्या reason से vomiting क्यों होता है? वो ज्यादा खा लेते हैं तभी भी हो जाता है। Yes. Okay. खुद में एकदम कॉन्फिडेंस है खाएंगे करके and you just dump. तो इतना ज्यादा खा लेते कि स्टमक बोलते हैं बस throw it out, right? And sometimes it happens हाँ you eat so much and then you start traveling, हाँ, तभी भी होता especially road travel. ट्रेन वगैरह में इतना नहीं होता है बट रोड में ज्यादा होता है। है। और कभी कभी मतलब माउंटेन्स का रोड रहता है ना, सब घूमने घूमने वाला, Yes, तो उसमें भी yes. हो जाता घाट्स वाले रोड में, बिकॉज उसमें क्या होता है, यू आर है। सिटिंग हाँ इन द बस एंड ये ऐसे टर्न मार रहा है, ये ऐसे टर्न मार रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू योर स्टमक? ऐसा एकदम नीचे उड़ रहा है, इधर कभी इधर, हाँ राइट? सो दैट टाइम इफ यू आर ईटन टू हाँ, मच इट विल बी आउट। ओके, उसको ट्रैवल तो सिकनेस खाया नहीं रहेगा फिर भी होता है ना। कभी भी होता है, बिकॉज देयर इज समथिंग और द अदर ना इनसाइड। एंड उसमें दूसरा क्या हो हाँ जाता है, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू दैट,
कि उसमें गाड़ी के पेट्रोल का स्मेल आ गया या ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ गया विच इज नॉट, मतलब वो अच्छा नहीं लगता वैसा स्मेल, तो देन ऑल्सो इट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। ओके, एकदम हाँ से मुझे गंदा सा होता या है वो। स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गया तो इट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। हाँ आई रिमेम्बर लाइक स्टूडेंट्स को एक्सकर्शन वगैरह लेके गया था हिल स्टेशंस में, तो हाँ बस में जाते हैं तो बस शुरू, बस में लोगों को बहुत जोश रहता है ना, हाँ नाच गाना एंड ऑल, तो जब लास्ट सीट में बैठे रहते हैं एक एक करके द each and every wicket starts coming to the front with a plastic cover in their hand. हाँ, Right? लेकिन वो एक बार हो जाता है तो फिर रिलैक्स हो जाता है जब Yes. ऐसा ना। कभी कभी वॉमिटिंग अच्छा है बिकॉज व्हेन इट हैपेंस ना, वो अंदर हाँ अंदर जो परेशान कर रहा था वो एकदम से निकल जाते हैं। एंड इमेजिन द सेंसेशन हाँ जस्ट बिफोर वॉमिटिंग। हाँ ऐसा। तो बस okay, उसको नौशिया नौशिया या गिडीनेस करके बोलते क्या? हैं, राइट? एकदम ऐसे लगता है कि हाँ वर्लपूल वर्लपूल, right? And then suddenly, if you are at the right place, not a problem. If you are in a wrong place, you know what's the problem, हाँ right? हाँ Especially जैसे ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो you know what हाँ happens. Yeah. So we'll discuss that more in the disorders part towards the end. ठीक है? तो अभी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब डिस्कस करना है, एंड देन कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आई थिंक अभी टाइम हो गया, लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम ये हाँ मेजर पार्ट जो है, जो एक्चुअल डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन हाँ प्लेयर्स है, उनके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है? एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ दैट। ठीक है? तो दैट शुड बी द एंड ऑफ द लेसन। आई थिंक 2 और टर्न वगैरह लेंगे तो हो जाएगा शायद। हाँ हो जाए। हो जाएगा।